ਛੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਛੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਛੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਇਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਛੰਤ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਜੇ ਤਿੰਨ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਛੰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਆਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਛੰਤਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਘਰ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਘਰ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਤੁਕੇ ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਚਾਰ ਤੁਕੇ ਛੰਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੰਤ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਛੰਤ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤੁਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸੰਗਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਛੰਤ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੁਕ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਕ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਛੰਤ ਹੋਏਗਾ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਘਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੋ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਨੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੀਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਤੁਕੇ ਛੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛੰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੰਤ ਘਰ ਚੌਥੇ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਛੰਤ ਘਰ ਚੌਥੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਛੰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਡਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ, ਘਰ ਤੀਜਾ ਸਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਘਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪਕੜ ਚੱਪਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਤੁਕੇ ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਤੁਕੇ ਛੰਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਛੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਛੰਤ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4 ਤੁਕੇ ਤੇ 6 ਤੁਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਛੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
बाकी सारे छंतां च केवल तुकां दी गिणती तो ही असीं समझ सकते हैं कि छंत किन्ना। 6 तुके छंत जदों होणगे तां पहली तुकां होणगीਆਂ 6, पर पहलियां 2 तुकां विच 2-2 कर हर तुक विच होणगे। बाकी ਜਿਹੜੇ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ 1 ਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਹੋ ਸਕਦੇ, 3 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ 2-2 ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 6 ਤੁਕਾਂ ਛੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੰਤ ਕਰ ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰ ਹੋਏਗਾ। तो ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ 3 ਕਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਖੇਡ 3 ਕਰਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਛੰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਕ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਪਹਿਲ ਤੁਕ ਵਿੱਚ 1 ਕਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਨੇ ਕਿ 3 ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੰਤਵ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ 1 ਕਰ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ 2 ਕਰ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ 3 ਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਛੰਤ ਕਰ 5ਵੇਂ ਦਾ ਛੰਤ ਹੈ ਜੇਕਰ 6 ਤੁਕੇ ਛੰਤ ਹੈ। तो इस तरह ये सारा भिन्न होता जाता है। इसे तरह ही 6 तुका छंत पहलियां दोनों तुकां च 3-3 कर ने, तीसरी तुक विच 2 कर ने, तो इस दे नाल ये छंत कर 8वां हो जाता है। तो ये सारा असी मुढ़ले तौर ते जदों असी आरंभ करते हैं तो सिर्फ असी इन्ना ही देखिए कि जेकर ये जो है छंतां दे तुकां विच घर किन्ने किन्ने, बस असी इसी पकड़ अज करन दी विचार करनी है कि छंत दी 1 तुक विच 1 कर दा की नियम है। इसनूं समझिए कि छंत दी 1 तुक विच 1 कर किवें हुंदा है। इस दी वरतों असी हुण विचार चुके हां कि सानूं छंत कर 6 तुके छंतां दी पछाण वास्ते, 4 तुके छंतां दी पछाण वास्ते ये देखना पएगा कि पहली तुक विच घर किन्ने ने। तो इहदे किहड़े नियम ने? बड़ी सरल बात है। असी पहला नियम विचारते हैं कि जदों तुक दा दूजा भाग पहले भाग दी ही व्याख्या हो, तो ये कितना आपस में सरल है कि इसे करके तो इको कर है। पहली गल तुरी है हाले एक छंतां दी। हुण सारियां तुकां ओह ने जिहड़ियां छंतां च ने। अंग 74 ते ये छंत है, छंत दी 1 तुक है। खसम सेती अरदास वखाणै उर्द ध्यान लिव लागा। हुण ये बात किस दी हो रही है कि जदों तू मात गर्भ च सी उस वेले तेरा ध्यान जुड़िया होया सी, तू लिव लाई बैठा सी, तू अरदासां कर रहा सी। तू अरदास किवें कर रहा सी? ध्यान जोड़ के, लिव ला के। जिहड़ा ला के और जोड़ के है ये अरदास दी व्याख्या है। इस करके 2 गल्लां नहीं ने, ये एक बात है। तो 1 सुनेहा 1 कर है। खसम सेती अरदास वखाणै उर्द, पुट्ठा लटकिया होया, ध्यान पर तेरा जुड़िया होया। पर अरदास करदियां तू पुट्ठा लटकिया होया सीगा, अरदास करदियां तेरा ध्यान लग्या होया सीगा, अरदास करदियां तेरी लिव जुड़ी हुई सी। इसदा भाव ये होया कि तुक दा दूजा भाग पहले भाग दी ही व्याख्या कर रहा है। तो इथों ये एक नियम है जिस दे नाल छंतां दे तुक जे इस तरह दी होएगी कि दूसरे भाग च सिर्फ व्याख्या हो रही है, गल पहले भाग दे नाल दी जुड़ रही है, तो उस दे नाल इसनूं कहांगे ये सारी तुक दा 1 कर है। इसी तरह अगले इसे नियम नूं होर आपां इसनूं क्योंकि इसनूं देखिए होर किस तरह तरीके नाल एक अंग 777 ते हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुस कै बलराम जियो। त्रुट के, तुस कह त्रुट के, गुरु साहब ने त्रुट के, सतगुरु ने त्रुट के दित्ती तो टेक ही है। तो टेक दी व्याख्या हो रही है कि त्रुट के दित्ती। तो इस करके दोने ये 2 गल्लां नहीं ने, इको गल है। इको गल है तो 1 कर है। हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुस कै बलराम जी। तो इस तरह बड़ा सरल है, नियम पहला ही चल रहा है, पर असी होर उदाहरण देख रहे हैं ताकि ये गल पक्की हो जाए। क्योंकि जदों तुक इस तरह दी होए कि 2 भाग ने पर दूसरा भाग पहले भाग की व्याख्या है। हुण एक इहो जिहा शब्द पातशाह तुक विच पांदे ने जिहड़ा सारे दोनों भागां नूं जोड़ दिंदा है। जा, जिवें एक शब्द है जा, जा दा भाव है जदों,
हुण देखिए, भेत चेत हर किसे ना मिलियो, पता ही नहीं लग्या जम ने कदों आके फड़ के लै गया। जदों साडे परिवार चों कोई जीत चला जांदा साडे विचों, तां इह हुंदा उस वेले वरतारा कि जम आके लै गया, किसे नूं पता ही नहीं, खबर नहीं लगी। कदों नहीं पता लगी? जदों लै गया। हुण जदों ने जा ने सारे तुक दा एक बनाता। भेत चेत हर किसे ना मिलियो, जा जम पकड़ चलाया। जदों उन्हें पकड़ के लै गया, किसे नूं पता नहीं लग्या। एक बात है, एक कर है, एक सुनेहा है। तो इस तरह ये वाले शब्द जिहड़े विच जोड़दे ने, एक असीं शब्द देखिया जा। हुण इस तरह जा इस वरतों दे नाल, जिवें जदों, होर, राम नाम घट अंतर नाही, होर जाने रस कस मीठे। सिर्फ तेरे अंदर राम नाम ही नहीं है, भगती वाला अंश नहीं है, बाकी सारे रस कस दुनिया दे ओदे तैनूं मिठे लगदे ने। एक तैनूं नाम सिमरन ही नहीं मिठा लगदा। तो ये एक बात है, होर ने करता, बाकी सारे होर जाने रस कस मीठे। तो इस तरह ये वाला शब्द होर इस तरह तुक नूं जोड़दा है, तुक दे दोनों भागां नूं जोड़दा है। इसी तरह एक होर शब्द असीं लैंदे हां तिस। तिस दा भाव है उसनूं। कहो नानक दूजे पहरै प्राणी, तिस काल ना कबहू खाए। उसनूं काल नहीं खांदा दूजे पहर विच। तो ये उसनूं ने ਉਹ ਦੋਨੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਨੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ। ਜੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਅੰਤ ਸਹਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ अंत सखाई होना सीगा, उसनूं कदे नहीं संभालिया। इस करके जे ने दोने भागां नूं जोड़िया। तो ये इसे नियम विच एक होर शब्द है। इसे नियम विच एक होर शब्द है जित। जित दा भाव जिस नाल। हर सेवहो खिन खिन ढिल मूल ना करे हो, जित अस्थिर जुग जुग हो। तो ये जित दा भाव जिस नाल अस्थिर हो। अजिहा हरि दा सेवन करो जिस नाल ने दोनों भागां नूं फिर जोड़िया। इस नियम का एक होर उदाहरण है। तो इसी तरह एक होर शब्द है जिन। साहरड़े विच खरी सुहंदी, जिन पेवकड़े नाम संभालिया। जिसने ने सारे तुक दा सारा सुनेहा इकट्ठा करता साडे वास्ते। तो ये जदों इकट्ठा किया जाता है, तो ये सौहरे घर जाके भी ओही चंगी लगती है, ओही सुहांदी है, उसनूं आदर मान मिलता है जिसने पेवकड़े अपना नाम नूं संभालिया है। भाव इत्थे असीं जदों नाम नूं संभालांगे ते ऊहा जाके पातशाह दी दरगाहे सानूं ओ साडा सौहरा है ते इह साडा पेवकड़ा है। ते सबना सौहरे वंजणा वाली जो बात है, गुरु साहब ने इस जिन दे शब्द दे नाल ये सारे सुनेहे नूं जोड़ के, तो इस नियम तहत ये भी एक ओह जदों इस तरह का तुक होएगी तो सारी तुक दा असीं एक कर जाणांगे। इस तरह एक होर शब्द है सु। सु दा भाव ओ। होर मनमुख दाज जे रख दिखा लहे, सो कूड़ अहंकार कच पाजो। उन्हां नूं ओ कूड़ अहंकार दिखाउंदे है। सो दा भाव ओ, ते ओ ने फिर दोनों सारे सुनेहे नूं फिर इकट्ठा जोड़िया। तो इस तरह ये दूसरा नियम होया। इस तो बाद एक होर है कि तुक दे विषय ने पर इको कड़ी विच जुड़े हुए ने। किस तरह? ना मरजाद आया कल पीतर, बाहुड़ जासी नागा। ना मरजाद आया कल पीतर, बाहुड़ जासी नागा। आया भी जिस तरह कहने नांगे आवन नांगे जान, ते इको स्नेह है। ये उसे गल्लों ना मरजाद भाव मर्यादा, बिना मर्यादा तो भाव नांगा। ना मरजाद आया कल पीतर, इस कल युग विच तू ना मरजाद आया ते बाहुड़ जासी नांगा, ते नांगा ही जाएगा। तो इस करके ये दोने गल्लां इको कड़ी विच जुड़ियां होईयां ने। इस तरह इस नियम तहत भी ये सारी तुक दा एक कर बनता है। इसी तरह ही
तुक दे विषय दी इको कड़ी किस तरह जुड़ती है? चेत अचेत मूड मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा। ये जड़ी ओ हुण चेत लै, अंत विच तेरा होर कुछ नहीं है, किसी होर नूं ना चेत। चेत अचेत मूड मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा। ये दोने जड़ी है पातशाह ने विषय इको तुक विच होए ने, उन्हां दोनां दी इको कड़ी विच जुड़े होए ने। इसे तरह ही सब किछ अपना कर कर राखिया खिन में पया पराया। तो मैं रखी रखिया अपना, पर खिन विच ही पराया हो गया। तो उस वस्त दी बात जिसनों मैं सांभी गया ते ओ पराई एक मिनट ही हो गई। तो खिन में पया पराया, ये दोने इको कड़ी विच जुड़े हुए विषय ने। इसी तरह हर हर नाम जपे आराधे विच अग्नि हर जप जीविया। जाप दी बात दोनों पासे, हर हर नाम जपे ते हर जप जीविया। भावें सारे संसार च अगन लगी हुई है, मन सारा तृष्णा दे अग च जल रहा है, पर क्योंकि हर हर नाम जपे आराधे, तां विच अग्नि विच भी हर जप के जीविया। तो जप दी बात दोनों पासे हो रही है, जुड़ गई। तो एक कड़ी जपण दी दोनों पासे जोड़ के सारी तुक दा फिर एक कर। इसी तरह जदों इको कड़ी चली जा रही, कहते सुनते लिखते, कहते पवित्र सुनते सब धन लिखती कुल तारिया जियो। तो ये जदों कहते सुनते लिखण दी जदों ये बात, ये भी एक कड़ी चल रही है। भावें गल्लां तीन होईयां, पर ये तिन्हां दी इको प्रथाए भी कहते सुनते लिखते। तो इस करके ये सारी दी कड़ी एक होई, तो सारी तुक दा एक कर होया। एक होर तरीका हुंदा है दोनों गल्लां नूं जोड़न दा, वो है कारण ते सिट्टा, कॉज एंड इफेक्ट। जदों इस तरह दी होए तो छंत विच उस तुक नूं भी असीं एक कर दा मन्नांगे। हर का नाम ना चेतै प्राणी बिकल भया संग माया। जदों नाम नहीं चेतिया तो इस करके माया दे नाल खच्चत होके मन व्याकुल होया। तो ये कॉज एंड इफेक्ट। तो ये इस तरह भी इनू दो अलग अलग गल्लां नहीं कर सकते, इनू दो घरां च नहीं लिया जा सकता। ये कॉज एंड इफेक्ट ने दोनों नूं फिर जोड़िया, ते कारण ते सिट्टा जो निकलिया, हर का नाम ना चेतै प्राणी बिकल भया संग माया। तो इस भी सारी तुक दा एक कर। इस तरह एक होर, हर सेती सत माणो रलिया जन्म मरण दुख खोवो। जेकर हरी दे नाल असी रच मिच जाइए, हरी दे सिफत सलाह च अपने आप नूं रुझान करिए, तां जन्म मरण दा दुख सानू फिर सानू जमकाल नहीं पोदा। तो ये जो ये भी कॉज एंड इफेक्ट है। तो इस करके ये सारी तुक दा एक कर। इसी तरह अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बुलाया। तो ये सारी तुक दा फिर एक कर। अज्ञान अंधेरा मेरा तां कटिया क्योंकि गुरु दा ज्ञान ये मेरे अंदर जाग गया, प्रकाश हो गया, मेरा अज्ञानता मेरी दूर होगी। तो ये दोने दा गल्लां दा एक कर। इसी तरह जदों संबंध की शब्दां दा इस्तेमाल होंदा है, वो दो शब्द फिर सारी तुक दा एक कर बनाते हैं। जिस तरह जैसी कलम बुड़ी है मस्तक तैसी जीड़े पास। जैसी और तैसी ने ये सारे तुक दा सुनेहा एक जोड़ता, इकट्ठा करता, ते सारी तुक नूं असीं कहने आ सारी तुक दा एक कर। ये संबंध की शब्दां दी वरतों करके। इसी तरह ही साई वस्त प्राप्त हुई जिस से लाया है, ओ वाली जेड़ी वाली, ओ जेड़ी। तो इस करके ये दोने जड़ियां साई और जिस ने ये सारे तुक दा एक कर। इसी तरह एक होर नियम है, जदों एक कर बनता है, लमेरी तुक भी होए, एक तो संबोधन अद्धी तुक च संबोधन चला गया, उस तो बाद इको विषय। तो संबोधन नूं एक विषय दे नाल भाव हो रह जांदा, एक गल होई है, एक तो संबोधन कीता है ते एक गल होई है, जिहड़ी एक गल होई है उसनूं असीं कहने आ एक कर है सारी तुक दा। चेत अचेत मूड मन मेरे। हुण इहदे च
मूड़ मन मेरे अपने मन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਛਦੇ। तो ये मन मेरे ये सारा एक कर एक संबोधन दे नाल एक विशा साडे कोल अगों आएगा। दो करां वाली तुक विच संबोधन दे नाल विशा ते एक विशा होर उदों होएगा दो कर ते ओ आपां विचारांगे। ते संबोधन उपरांत केवल इसे करके लिखिया संबोधन उपरांत केवल एक विशा। कहो नानक प्राणी दूजे पहरै विसर गया ध्यान। तो नानक दा संबोधन ते विसर गया ध्यान कदों विसर गया दूजे पहरे। तो ये जो इस करके एक विशा एक कर। तो इसी तरह कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपा धार। तो हर जपिए कृपा धार स्नेह है कहो नानक दा संबोधन है ते पहले पहरे की गल हो रही है। तो इस करके सारी तुक दा एक कर। हर सत सते मेरे बाबुला हर जन मिल जंज सुहंदी। तो बाबुला दा संबोधन ते हर जन मिल जंज सुहंदी। तो इस दे नाल एक सुनेहा। तो इस करके सारी तुक दा एक कर। इसी तरह ही मन प्यारिया जियो मित्रा गोबिंद नाम संभाले। तो गोबिंद नाम संभाले साडा सुनेहा एक उदा संबोधन है। एक संबोधन ते एक विशा ये सारी तुक दा एक कर। तो इन्हां नियमां दे नाल असी एक कर। हुण जे तुक दा विषय एक होए अंतरे हम अंतर दी गल हो रही है। अंतरे हौमै ममता काम क्रोध चतुराई रा। तो इस करके सारी तुक दा एक विशा होने करके तो ये भी सारी तुक दा एक कर। तो इस तरह ये सारे असी वो विचारे ने जिहड़े नियम जिन्हां दे नाल जदों भी छंतां दियां तुकां देखांगे ते एक कर किवें होएगा वो असी विचारे। हुण असी देखिए कि दो कर कदों कवांगे किहड़ियां तुकां ने जिस दो कर हुंदे ने। एक दो या तीन दी बात है सिर्फ। तो कर एक कर असी देखिया कि आ इन्हां हालातां विच उन्हां नूं असी नियम भी कह सकदे हां। इन्हां नियमां दे तहत असी आ छंतां दे इन्हां तुकां विच एक एक कर इस तरह असी निर्धारित करते हैं। छंत विच दो कर किवें बनदे? जदों एक संबोधनी शब्द की वरतों विचकार आती है तुक दे विच संबोधनी शब्द आ गया। जिवें जे ए वाली तुक होंदी ना पहले पहरे रहन के हुक्म पिया अगर पास तो ये एक कर बन जाता। पर पहले पहरे रहन के वणजारिया मित्रा हुक्म पिया अगर पास तो वणजारिया मित्रा दे संबोधनी शब्द ने इसका दो कर बना। तो इस तरह संबोधनी शब्द विचकार आए तो एक विशा एक पासे फिर संबोधन ते फिर दूजे पासे। तो जिहड़ा पहले असीं देखिया सीगा उहदे च संबोधन तो शुरू करते। अच्छा इस तो बाद दूसरा नियम की दो करां दा दो तरह दे कारज दो भिन्न कारज दो वख-वख कारज दो या किरिया दो वख-वख किरियावां उहदे च हथों हथ नचाईए प्राणी मात कहे सुत मेरा। मात कह रही है कि मेरा पुत्र है ते सारे हत्थां च नचा रहे ने ये दो गल्लां। तो हथों हथ नचाईए प्राणी एक कर मात कहे सुत मेरा दूजा कर। तो इस तरह इहदे च साडे कोल दो कर इस तरह होंदे। कथन न जाए अकथ सुआमी। वो कथन की गल है पर सदके जाए नानक वारिया। सदके जाना दूजी गल है कथन ना जाए एक गल है। तो ये दोने कारजां दे मेल दे नाल दो कर एक तुक विच। फिर दो संबंधकी शब्दां ने जिस तरह एक कर बनाया सी हुण दो संबंधकी शब्दां तो बाद एक कर होर होवे तुक विच तां भी दो कर। किस तरह जिन रच रचिया तिसे ना जाने। ये दो संबंधकी शब्दां ने एक कर बनाता पर अगे एक होर है मन भीतर धर ज्ञान। तो मन भीतर धर ज्ञान ने एक होर कर समझ दिता। एक तुक विच दो कर हो गए। इसी तरह जिसकी वस्त तिस चेत हो प्राणी जिस ते तिस पर अगे एक दूजा कर हिरदय गुरमुख विचार। तो इस दे नाल अजिहियां तुकां च जिथे संबंध की शब्दां दे मेल दे बावजूद एक कर होर है तां उस दूजा दो करां वाली तुक।
ਔਰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਛੂਟੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਉੱਧਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਤ ਪਾਵੈ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ। ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਛੰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ 3 ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਛੰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ 3 ਕਰ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ 2 ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗ 452 ਤੇ ਛੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਹੈ, ਸੀਤਲ ਆਕਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੇ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਬਸੀਠਾ। ਤੋਂ ਆਕਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਮੇਲ ਨੇ, ਉਚਾਰਣਕ ਮੇਲ ਨੇ। ਇਹ 2 ਕਰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3 ਕਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ 2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ 75 ਅੰਗ ਤੇ, ਧਨ ਸਿਓ ਰੱਤਾ ਜੋਬਨ ਮੱਤਾ ਅਹਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, 3 ਕਰ। ਅੰਗ 79 ਤੇ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਰ ਸੇਵੇ ਅਲਖ ਅਪੇਵੇ, ਸੇਵੇ ਅਪੇਵੇ ਹਰ ਦਰ ਸੇਵੇ ਅਲਖ ਅਪੇਵੇ ਨਹਿਚਲ ਆਸਣ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਛੰਤੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛੰਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਕ ਹੈ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਹੈ ਗਾਮੀ ਇਚ ਸਗਲੀ ਪੁੰਨੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਤੁਕ, ਪੁਰਬੇ ਕਮਾਏ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਪਾਏ ਹਰ ਮਿਲੇ ਚਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ 3-3 ਕਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ 3 ਕਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਚਾਰਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਿਖ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ 3 ਕਰ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ 2 ਕਰ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ 1 ਕਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੰਤਾਂ ਦੇ 4 ਤੁਕੇ ਤੇ 6 ਤੁਕੇ ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਕ ਵਿੱਚ 1 ਕਰ ਹੈ, 2 ਕਰ ਨੇ ਜਾਂ 3 ਕਰ। ਤੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।